इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु हरिः ओम। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। प्रिय जगन्नाथ प्रेमी दिव्यात्मन मम आराध्या माता भग्निवृंद आपण मानकु समस्तंकु जय जगन्नाथ टीवी परिवार तरफरु हार्दिक शुभकामना। शुभरात्रि। दर्शन करुछंती महाप्रभु श्री पतित पावन, दर्शन करुछंती पतित पावन भगवान को। आज महाप्रभु वर्षा हला बोली कौन बाँकी टिके नाक आसी टिके पकई देइछ कि कौन घटना कौन कौन घटना कौन? महाप्रभु आमर बाँ पट आखि उपर टिके नाक आसी चढ़ेकी रखिछंती। अरुण स्तंभ सिंहद्वार भक्त मानक भड़ माने आमे दर्शन करुचे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। सतेरे महाप्रभु को नारे तुमको किए डाकिव? किए केउ नामे डाकंती तुमको, तुमे तो सर्वनाम। सकल हृदय विराजित प्रभु जगन्नाथ परम ब्रह्म। जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। केते आकर्षण तुम ठारे प्रभु, भक्त आतुर हुए। तुम ठारे आखि लाखी गले थरे, निजकु पचारे किए। सतेरे से आखि चका आखि, से आखि साधारण आखि नुहे। से आखि सूर्य चंद्र तारा तुमरी आज्ञा रे परसंती ज्योतिराशि। तुमरी कुसुम प्रति प्रभात रे हसैया नंदे भासी। हाथ पाद नाही कि विचित्र रूप, महाबाहु विश्वव्याप्त। रूप रंग नाही केमिति के जानी, जगतरे दीप्तिवंत। सतेरे जगतर दीप्तिवंत ठाकुर एकमात्र जगन्नाथ। रत्न सिंहासने बसीछ शान्ते, निर्विकार दारु ब्रह्म। केमिति बसीछ? निर्विकार दारु ब्रह्म रे महाप्रभु बसीचंती रत्न सिंहासन रे। रत्न सिंहासन रे महाप्रभु बसीचंती निर्विकार दारु ब्रह्म। कोटि वैकुंठर पुण्य फल दिय, पतित कले दर्शन। जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अधर आपण देखुछंती केमती लाल आखि कर्पूर लगा है। ये लाल आखि तो काले गरम हो माने बेसी रागिगला आखि लाल हो जाए। अधिक पानी थंडार गाधेले आखि लाल हो जाए। ये महाप्रभु आखि लाल हो कर्पूर चारिपटे दिखाई देखुना धला। तापर एपटे अधर मध्य लाल, पूरा लाल लाल। ओहो रंगधर सुशोभित हस, जगतरे प्राण भरे। ये जो सुशोभित हस ये सारा जगत रे प्राण संचार करे। जीए जेते दुखरे थिले भी या सूचई दिए 144 वर्ष पर्यंत पाताली हेकि मध्य मु हसुची हसुची हसुची।
ଦୁଃଖ ଅନ୍ଧକାରେ ତୁମ ଚକାଖି ଶୀତଳ ଜୋଛନା ଢାଳେ। ସେ ଚକାଖି ଆମକୁ ଶୀତଳର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଢାଳୁଛି। କୃପା ସିନ୍ଧୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସର ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ। କୃପା ସିନ୍ଧୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସର ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ରୂପ ରଙ୍ଗ ନାହିଁ କେମିତି କେଜାଣି, ନୟନର ପଥଗାମୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆସନ୍ତାକାଲିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଞ୍ଜିକା କ'ଣ ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ବୈଶାଖ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି ବୁଧବାର 8/4/2026 8 ତାରିଖ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଅଛନ୍ତି 5:38:06। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଅଛନ୍ତି 5:59:12। ଆସନ୍ତାକାଲି ଷଷ୍ଠୀର ଏକୋଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ନିମଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ। ରାତି 7:32 ପରେ ତାଳ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ। ବୈଶାଖ ମାସ ଆସିଲାଣି, ଏଥର ତାଳ, ସେଥିପାଇଁ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଭଲ କଥା ଅଛି ତାଳ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ। ଏଇ ଆଜିର ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଠାରୁ 7:11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଶୁଭ ବେଳାରେ। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ରହିଛି, ଦିନ 11:57 ଠାରୁ 1:33 ମଧ୍ୟରେ, ଭଲ କଥା। ପୁଣି ରାତିରେ ଅଛି 6:50 ଠାରୁ 9:14 ମଧ୍ୟରେ। ପୁନଃ 2:06 ଠାରୁ ନିଶାନ୍ତ 5:38 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ରହିଛି ଦିନ 3:56 ଠାରୁ 5:08 ମଧ୍ୟରେ। ପୁଣି ରାତ୍ରି 9:13 ଠାରୁ 10:49 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତ ଥିଲା ଶୁଭ ବେଳା ଏବଂ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା 12ଟି ଯାକ ରାଶିଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରାଶିଫଳ। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ଓହୋ, ଦେହ ପୀଡ଼ାର ଯୋଗ ଅଛି। ହଉ, କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ଏ ଦେହ ଅଛି, ନଶ୍ୱର ଦେହ, ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନଥିବ। ପୀଡ଼ା ଆସୁଛି, ଉପଶମ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ନହେଲା, ହବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ତଥାପି ରୋଗାନ ଶେଷା ନ ପହଂସି ତୁଷ୍ଟା, ରୁଷ୍ଟା ତୁ କାମାନ ସକଲାନ ଭୀଷ୍ଟାନ। ବିପନରାଣାଂ ତ୍ୱାମାଶ୍ରିତାୟା ଶ୍ରୟତାଂ ପ୍ରୟାନ୍ତି। ବାସ୍ ଏତିକି ଗାଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ବହୁତ ହେଇଗଲା, କ୍ଲିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଏତେ ବାଟ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏତେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଲେଖିବ କିଏ, ପଢ଼ିବ କିଏ ଏତେ ବାଟ ରୋଗ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଯଦି ସେଇଭଳି ଅଛି ୟାକୁ ତ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଟିକେ ସରଳ କରିଦେଉଛି। ନାଶଇ ରୋଗ ହରଇ ସବୁ ପୀରା, ସରଳ ନା। ଜପତ ନିରନ୍ତର ରଘୁନାଥ ବୀରା। ବାସ୍ ସରିଲା କାମ। এইটা বলো, ସରଳ ସହଜ। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମିଥୁନ ରାଶି ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆଉ କର୍କଟ ରାଶି ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶି ବାଦ ବିବାଦ ଭିତରେ ଦିନଟି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଆଉ ତୁଳା ରାଶି ଆଳସ୍ୟ ମନୋଭାବ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବିଛା ରାଶି ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଜୀବନ ଧାରଣ କର, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। ଆଉ ଧନୁ ରାଶି
ବ୍ୟୟଯୋଗର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମକର ରାଶି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ମକର ରାଶି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଉ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟୟଯୋଗ ଗଲା ଆଉ କ'ଣ, ଏପଟେ ଆସିବ ସେପଟେ ଯିବ, ମିଶାଇଦେବା 2 ଜଣ। କୁମ୍ଭ ରାଶି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଦେଖାଦେବେ। ମୀନ ରାଶି ସେବା ଧର୍ମରେ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ ହୋଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତ ଥିଲା 12ଟି ଯାକ ରାଶିଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରାଶିଫଳ ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଞ୍ଜିକା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ନା ନାହିଁ। ଧର୍ମାବତାରାୟ ଜନାର୍ଦ୍ଦନାୟ ସୀତାକଲତ୍ରାୟ ମହୋରଗାୟ লীলা শরীরায় চতুর্জয়ায় তস্मै নমঃ শ্রী রঘুনন্দনায় তস্मै নমঃ শ্রী রঘুনন্দনায়। যে ধর্মর অবতার স্বরূপ, দুষ্ট লোকଙ୍କର ପୀଡ଼କ, ସୀତା ଯାହାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ଦମନ ପାଇଁ ବୃହତ୍ ସର୍ପତୁଲ୍ୟ, ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କ ଶରୀର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଜୟ କରାଯାଏ, ସେହି ରଘୁବଂଶର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ସେହି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଗତକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ରାବଣର ଭାଇ ବିଭୀଷଣ କଥା। ରାବଣର ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ଗଲା ଶରଣ, ରାବଣ ପରେ ବିଭୀଷଣ। ରାବଣ କଥାଟି ଆଲୋଚନା ଥିଲା, ବିଭୀଷଣ ହେଲା କ'ଣ ନା, ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଲଙ୍କାରେ ବା ରାବଣ କହିଲା ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଲଙ୍କାର କ'ଣ କରି ପକେଇବେ। ତେଣୁ ଏସବୁରେ ଆଉ ରାବଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନି। କିନ୍ତୁ ବାନର ସେନା 100 କି 200 ନୁହନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ 18 ପଦ୍ମ ସୈନ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବିଭୀଷଣର ବୁଦ୍ଧି, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆଉ ବାନର ସେନାଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ଏ 3ଟି ଯାକ ଦେଖା ଦେଇଛି କୋଉଠି ନା ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡରେ। ଭଲ କଥା, ଏଇ ବିଭୀଷଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଶକ୍ତି, ବାନର ସେନାମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ରାବଣ ପାଇଛି ମୁକ୍ତି ଆଉ ଲଙ୍କା ହେଇଛି ହୀନ ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇଯାଇଛି, ଛାରଖାର ହେଇଯାଇଛି। ରାବଣ ଶେଷରେ ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ନିଦରୁ ଉଠେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଠେଇଲା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି, କାରଣ ସେ ବର ପାଇଛି। ଯଦି ଅସମୟରେ ଖାଇବ, ମାନେ 6 ମାସ, ସିଏ କହିଥିଲା ମୁଁ 6 ମାସ ଖାଇବି, ଦିନେ ଶୋଇବି। ଏଇ ସବୁ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସରସ୍ୱତୀ ବସିକି ସବୁ ବାଉଳ ଚଳା କରିଦେଲେ, କହିଲା ଏଇଟା 6 ମାସ ଖାଇବ, ଯଦି ତ ସବୁ ଖାଇଯିବ, କେହି ତ ରହିବେନି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଇଏ 6 ମାସ ଶୋଇବି, ଦିନେ ଖାଇବି, ତା ତୁଣ୍ଡରେ ମାନେ କଣ୍ଠରେ ବସିଗଲେ। ଜୀବରେ ଯେତେବେଳେ ସରସ୍ୱତୀ ବସିଗଲେ, ସେ କହିଦେଲା 6 ମାସ ଶୋଇବି, ଦିନେ ଖାଇବି। ସେ ଦିନେ ହିଁ ଖାଏ, 6 ମାସ ଶୁଏ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁକରି ଯେ ଅଧିକ ଶୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏପଟେ ଆଉ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପୁଅ ମାନେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଠାଇଲା, ବଡ଼ ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ରାମବାଣରେ ସମସ୍ତେ ନିପାତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶେଷରେ ହତାଶ ହେଇକି ରାବଣ ନିଜେ ଆସିଲା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଗଲାଣି, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କ'ଣ ତା ନା କ'ଣ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଗଲାଣି, ଇଏ ସବୁ ଗଲେଣି। ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ନେଉଛେ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କଥା, ସାରାଂଶ ଦରକାର। ତେଣୁ ଶେଷକୁ ରାବଣ, କିନ୍ତୁ ରାବଣ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ମାୟାବୀ। କେତେବେଳେ ତଳେ, କେତେବେଳେ ଉପରେ, କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ସେ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବହୁ ଭେଳିକି ଦେଖେଇଲା, ବହୁ ଭେଳିକି। ଶେଷରେ ରଥ ଉପରେ ବସିକିରି କ'ଣ କଲା ନା, ନାନା ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ, ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ମଗେଇଲେ। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ
ମାତଳି ଦିବ୍ୟ ରଥ, ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ରଥ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରେ, ପରମ ତେଜସ୍ୱୀ ରଥ ଉପରେ ବସିକି ଶ୍ରୀରାମ କ'ଣ କଲେ? ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଆଉ ସେ ରାବଣକୁ କହିଲେ, ତୁ କୁକୁର ଭଳି ଲୁଚି ଛପି ଆସି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତାକୁ ହରଣ କରିଛୁ। ତୋଠୁ ଭଳି ପାପିଷ୍ଟ ନିର୍ଲଜ ଏ ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୋ କୁକର୍ମର ଫଳ ତତେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ରାବଣକୁ ଧିକ୍କାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀରାମ ନାନା ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ବହୁ ସମୟ ଧରି ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ଏପଟେ ଆମେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଦେଖୁଛେ। ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଥରହର ହୋଇ ଉଠିଲା। ଶେଷରେ ରାବଣ ରଥ ଉପରୁ ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବାଣ ରାବଣର ଛାତି ଫଟେଇଦେଲା। ଧାର ଧାର ହେଇକି ରକ୍ତ ଛୁଟିଲା। ଘୋର ଗର୍ଜନ କରି ରାବଣ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲା। ହେଲେ ରାବଣର ଏଭଳି ଚିତ୍କାର, ଏଭଳି ସେ ଚିତ୍କାର କଲା, ଲଙ୍କାବାସୀ ବି କେବେ ହେଲେ ଏମିତି ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ନଥିଲେ। ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଆଉ ଲଙ୍କାରେ ସେତେବେଳକୁ ପୁରୁଷ ବୋଲି କେହି ନଥିଲେ, ଥିଲେ କେତେକ ରାକ୍ଷସୀ। ରାବଣ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଦେଖିଲେ ରାବଣର ଶବ ପଡ଼ିଛି, ବା ରାବଣ ଶବ ପାଲଟିଛି। ରାକ୍ଷସୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମରି ତଳେ ଲୋଟୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ବିୟୋଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ ଶୋକ କହିଲେ ନ ସରେ। ନାରୀମାନଙ୍କ ବିକଳ ବିଳାପରେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ମନ୍ଦୋଦରୀ ରାବଣର ଶବକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ବାହୁନି ବାହୁନି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁବାର କହିଛି ପର ସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ ଅତି ଜଘନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ସୀତାର ନିଶ୍ୱାସରେ ତମର ଏଇ ଦଶା ହେଲା। ତମେ ତ ଗଲ ନାହିଁ, ନିଜ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁରୀ ଲଙ୍କା ସହିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଧବା କରିଦେଇଗଲ। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବଳିଷ୍ଠ ଶରୀର, ଏବେ ସେ ଶରୀରକୁ ଶାଗୁଣା ବିଲୁଆ ଜୁଣିଲେ। ତମ ଆତ୍ମା ନାଇଁ 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 ଅହହ ନାଥ ରଘୁନାଥ ବିନୁ ସମଦରସି ନହିଁ ଆନ ଯୋଗୀ ବୃନ୍ଦ ଦୁର୍ଲଭ ଗତି ତିହ୍ନି ବର ଦିହ୍ନି ଭଗବାନ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଅତି ଅକ୍ଲେଶରେ ଯାହା କହିଲେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ରାବଣ କୋଉ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ଆଉ ତାକୁ ଅକ୍ଲେଶରେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଦିଆଇ ଦେଲେ। ଯୋଗୀ ବୃନ୍ଦ ଦୁର୍ଲଭ ଗତି। ତାପରେ ଏପଟେ କ'ଣ କଲେ ନା ଅହହ ନାଥ ରଘୁନାଥ ବିନୁ। ରଘୁନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସମଦର୍ଶୀ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ ଅସତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଅନ୍ୟାୟ ଅପ୍ରିୟ ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ତମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗୀବୃନ୍ଦ ଦୁର୍ଲଭ ଗତି, ଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ, ଋଷିମାନଙ୍କୁ, ମୁନିମାନଙ୍କୁ, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ, ସନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦୁର୍ଲଭ, ଯୋଗୀମାନେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ, ଯାହା ଦୁର୍ଲଭ ତମକୁ ସେ ସେଇ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା, ଇଏ କଥା ନୁହଁ? ଆପଣ ବିଚାର କଲେ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ମୁନିମାନେ ବସି ନ ଦେଖନ୍ତି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ, ପାଆନ୍ତିନି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ବସି କେବଳ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ସାଧକ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ମୁନିମାନେ ବସି ନ ଦେଖନ୍ତି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ, କିଛି ଧାଇବାରୁ ମହେଶ ମାତ୍ରକ ବସି କରୁଥାନ୍ତି ଧ୍ୟାନ। ସିଏ ବସିକି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଗତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଦେଖୁଛେ, ସେଇ ଗତି ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ। ଏବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁଣି କ'ଣ? ଇଏ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ, ପଦ୍ମକଢ଼ି, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ତାଠୁ କମ୍
सुभद्राଙ୍କ आसन पाखरे सिंहासन पाखरे आउ गोटे टिके फिका आपण दर्शन कर जगन्नाथ पाखरे आउ एपटे सुदर्शन पाखरे छोटियाटी। तेणु सुकमुनि कहले हे परीक्षित श्रीराम लंका विजय सरीला रावण मला श्रीराम निर्देश रे विभीषण भाई रावण परिवार लोकंकर शव सत्कार कले। एठी विभीषण कौन कले ना शव सत्कार कले। एठी गोटे कथा आपण देखंतु विभीषण एकमात्र अछंती विभीषण किए से ना विभीषण को प्रथमे हनुमान ही बल देइछन। न्याय तो देखा गले राम भक्त विभीषण किंतु गुरु रूप रे हनुमान को पाइछन। रामायण रे आपण देखिबे विभीषण को गृह को जाइछंती हनुमान एते डरालु होइकि अछंती डरिकी अछंती। संध्या धूप बढ़ी जाइछि फाळे कबाट पड़ला देखिले फाळे कबाट बंद हला ना नहीं। दुईटी दृश्य आम देखुचे गोटे पटे देखुचे पतित पावन आ गोटे पटे देखुचे आमे कौन ना सेपटे सिंहद्वार गुमुट। एइठी गोटे कथा आपण रामायण देखिबे विभीषण भाई आ मंत्री दीटा जाक कार्य निर्वाह करथिले लंकारे हेले मध्य विलास व्यसन ठारू दूर रे न्यायवान। दिने मने पड़ जाए महाभारत मध्य सेया दिने बसिचंती धृतराष्ट्र राजसभा अछंती पितामह भीष्म अछंती विदुर मंत्री गोटे पटे बसिचंती युधिष्ठिर इत्यादि 5 पांडव आ गोटे पटे बसिचंती कर्ण दुर्योधन इत्यादि समस्ते बसिचंती सभा चलीची। एतिकी बेले जड़े आसिकी पहुँची गले माने दूत माने सैन्य माने 4 जन को बंदी करके आनिकी आसिले। जेतेबेले 4 जन को बंदी करके आनिकी आसिले तांको पचरा गला जे बंदी मानकर दोष कौन ना ए माने कौन करिसंती ना ए माने नरहत्या करिसंती हत्या करिसंती। धृतराष्ट्र विचार करुछंती ना बंदी माने कौन कहउछंती ना बंदी माने स्वीकार करिछंती आमे हत्या करिछु ना ताहला कौन करा जीवो एमानु को मध्य एति कहलालो विदुर रोकिदेले क्षमा चाहूँगी महाराज आमर युवराज पदरे अभिषिक्त होगा विचार करा जाउछि। ए विचार दिया जाऊ युवराज को किए ना दुर्योधन अछंती युधिष्ठिर अछंती। न्याय तो ये कहगला दुर्योधन कहिबे ना बड़ भाई युधिष्ठिर आग कहिबे कि पुणी गोटे न्याय कहले जेहेतु राजा राजा धृतराष्ट्र तांका पुओ दुर्योधन कहिबे ठीक अच्छी। कुंती भी बसचंती गांधारी भी बसचंती। दुर्योधन को पचरा गला जे माने को कौन दंड विधान करा जीवो। दुर्योधन कहले विचार कौन करा जीवो नीति तो अति स्पष्ट 4 जन दोष स्वीकार करिसंती जन को से दंड देइछन ताकू जीवन रे मारी देइछन 4 जन को फांसी दिया जीवो विचार ठीक फांसी दिया जीवो। कारण आगुर राजा मध्य से शुणैबा को जाइछंती ताले एमान को फांसी दिया जाऊ। समस्ते मध्य केते थिले दुर्योधन पक्षरे जय जयकार कले शकुनी मध्य जय जयकार कले। ठीक एतिक बेले महात्मा विदुर कहले जे क्षमा चाहूँगी महाराज विचार संपूर्ण हेनी आउ जने युवराज मध्य अछंती युधिष्ठिर सी मध्य मत रखा आमे तांको दबा आवश्यक ना सी कौन मत देवे तांकर कौन अच्छी सी तो एथिरे सहमत हेबे ना हुए तो सहमत ही न पारंती आमे केमिति जानिबा तेणु तांको मुखरु आमे सुनिबा
पचरागला युधिष्ठिर को जे आपण एथिरे सहमत ना नहीं। सेतिक बेले युधिष्ठिर कहले क्षमा चाहूँ महाराज, संपूर्ण तथ्य न जानी मु केबे सहमति दे पारि नहीं। कौन तथ्य तुम्हें जाना चाहूच ना दोषी मान मुखर मु शुणा चाहूँ ना से माने तो मानि नहीं जे आमे माने दोषी आमे हत्या करिछु ना। ठीक अच्छे मोर किछि प्रश्न अच्छी। प्रथम एमान को पचरा जाऊ माने कौ जातिर। समस्त हसिले कहला दोष जी कर जाति पचरा जीव, जाति नहीं करी कौन दंड सहित कौन संपर्क अच्छी अच्छी पचार। जड़े होउचंती शूद्र, जड़े होउचंती वैश्य, जड़े होउचंती क्षत्रिय, आउ जड़े होउचंती ब्राह्मण। 4 जन को पचरा गला बेले या जना पड़ा। एठी विचार कले समस्त हसुचंती, किछि हसुचंती किछि सपक्ष अछंती। पितामह भीष्म मध्य एतिर सपक्ष अछंती जे युधिष्ठिर तांकर मत रखि पारिबे। जते बेले युधिष्ठिर कहिले जे से व्यक्ति विशेष कहला मु जने शूद्र ना, ताले तुमको ए व्यक्ति विशेष को 4 वर्ष कारादंड दिया जाऊ। आउ जने वैश्य 8 वर्ष कारादंड दिया जाऊ। आउ जने क्षत्रिय 16 वर्ष कारादंड दिया जाऊ। आउ जने हेले ब्राह्मण केते वर्ष दंड दिया जीवो ना फांसी दिया जीवो। सेठी किंतु युधिष्ठिर न्याय उल्टा कहले ब्राह्मण को दंड देवार आमर अधिकार नहीं, तेणु यार विचार गुरु कृपाचार्य ही करिवे। गुरुदेव यार निर्णय नेबे, गुरुदेव जहा कहिबे तांकर विचार गुरुदेव करिवे। कथा डेट रहिला आपण विचार को अन्य माने कहले अरे दोष एक दंड केमिति एते प्रकार रो। दोष तो गोटिए ना शूद्र से कौन जानी से जानी जे जहा कहले से सेवार प्रति से सेवा करि तेणु ता 4 वर्ष। वैश्य टिके तार शूद्र अज्ञान, वैश्य ताठारु टिके ज्ञानवान तेणु तार 2 गुण ताको 8 वर्ष दंड विधान। क्षत्रिय क्षेत्रात्रायते जे क्षेत्र को रक्षा करे से जदि हत्या करिवो ताले तार 2 गुण से दंड भोगिबाकू उचित, तेणु ताकू 16 वर्ष। और रहिले ब्राह्मण, ब्राह्मण को गुरु माने गुरु आमर गुरुदेव तार विचार करिवे। तेणु एठी विदुर थिले मंत्री। ए कथाटी ये विदुर को जोगु ही एठी युधिष्ठिर मत रही पारिला। सेई भली किंतु दासी पुत्र सी परे तांग कथा मानिबी ना, मानिनी। जेतेबेले दुर्योधन राजा हला से विद्रोह कथा को मानिनी, भर्छना भी करिछि दासी पुत्र को। एपटे विभीषण मध्य भाई और मंत्री, आ विभीषण दुर्योधन कका धृतराष्ट्र राष्ट्रंकर भाई। चिंता करूँ रामायण महाभारत भीतर किसी प्रभेद ना। आम जी जो मार्ग नवा सबुथिरे महाप्रभु कथा कथा महाप्रभुंर सबुथिरे। तेबे एठी विभीषण विलास बेसन रे नहांती कि सेपटे विदुर मध्य विलास बेसन रे नहांती। 2टी बर कथा आसीछि। पूर्ण तामसिक रावण पाखरे विभीषण मंत्री और भाई, आओ अंधा कानून रो विचार भितरे विदुर मंत्री और भाई। आउ एपटे विभीषण कर विलास बेसन नाही। नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई, रामायुध अंकित गृह शोभा वरणी न जाई। विभीषण कुटीर रे रामायुध अंकन करा जाइछि। लंका रे राम नाम शुणी हनुमान मुखर श्रवण करिया मिली। अन्य पक्षरे विदुर मंत्री और भाई हेले मध्य विदुर घर साग जाऊ खाई संतोष महाबाहु। अर्थ विदुर घरे खाइबा को नहीं साग जाऊ, साग पखाल खाई महाप्रभु साग जाऊ। विलास बेसन नहीं, 2टी जाक समान। तेणु
विदुर भाई आ मंत्री होइकी मध्य विलास व्यसन ठारू दूर विभीषण भाई आ मंत्री होइकी मध्य विलास व्यसन ठारू दूर से विभीषण गृह को हनुमान गला बेले विदुर गृह को भगवान जाइछंती दुईटी कथा देखते तेणु दुई सन्थंकर अपमान पाई महाप्रभु दुईटी महाप्रलय सृष्टि करिछंती महाभारतर प्रलय रामायण रे प्रलय दुईटी महाप्रलय तेणु एठी गोटे कथा जे जो विभीषण गृह रे रामायुध अंकित गृह शोभा भरणी न जाई नव तुलसी का वृंद तह देखी अरस कपिराई अर्थ विभीषण गृह रे थाए श्रीराम का आयुध धनुषर चिन्ह अंकित होइछि से भवनर शोभा मध्य अतुलनीय सेठी सुंदर तुलसी गछटीए ताकू देखिकी कपिराज हनुमान आनंद होइगले एठी गोटे कथा अछि कोन ना दुआरे कोदंड कांडर चिन्ह कार विभीषण विलास विहीन कुटीर नव तुलसी का वृंद तह नव तुलसी अर्थ सबुदिन चयन हवा प्रतिदिन विष्णु लगी हेबा ए तुलसींकर एवं कर्तांकर धर्म प्रत्येक दिन स्नान परे तुलसी मूल रे जलदान किछि तिथि को छाड़िकी प्रत्येक प्रभु को नाम रे तुलसी चयन करिबा द्वारा प्रभु तुलसी प्राप्ति बा तुलसी को प्रभु प्राप्ति नचेत तुलसी अल्प दिन रे मंजरी की शुष्क हो जाती तापर तुलसी को सीधा आ बेलपत्र को ओलटा अर्पण करा जाए तुलसी आ बेलपत्र पूर्वरु थिले मध्य ताकू बासी कहा जाए नाही गोटे तुलसी पत्र सह भगवान कृष्ण को ओजन माने कृष्ण को आ तुलसी को ओजन करी सारा द्वारका संपत्ति तुलसी को पाखरे हल्का हो जाइतिला तेणु कृष्ण को तुलसी सह तुलरे ओजन करिथिबारु प्रभु को मुखरु तुलरे हेबारु से बेसी नामता होइब तुलसी जा हनु माने विभीषण को कुटीर आगरे तुलसी वृक्ष तेणु एठी अभिराम पद्मकल्प भी सुंदर वर्णना करती कृष्ण को दिया तू तुलसी रे मदालसी कृष्ण होइबे ब्रह्मराशि रे मदालसी कृष्ण को दियो तेणु एठी हनुमान जेतेबेले जाइतिले विभीषण को कुटीर को सी देखितिले जे भितरे थिबा संत जनक प्रत्येक दिन भजन कीर्तन एवं तुलसी चयन करुछंती आरंभरु रहिछि तेणु प्रभु प्रेमी प्रभु को सानिध्य लाभ करियो कारण ब्राह्म मुहूर्त रे जाइछंती आपण देखिबे लंका निशिचर निकर निवासा श्री राम यहाँ कहाँ सज्जन करवासा श्री राम हनुमान संदेह रे पड़ी जाइछंती किछि माया करिनी तो रावण सबुजाक राक्षस जोटी रहउचंती निशिचर माने रहिचंती या भितर जने सज्जन किए से वास करिचंती कारण कौन ना सारा लंका रे जने साधु सारा अयोध्या रे जने असाधु कथा पूरा लंका रे जने साधु विभीषण आपण चिंता करते ये विभीषण आ विदुर कंपेयर आप देखिले केमिति गला किंतु आउ गोटे कथार जदि साधु तो असाधु रे देखिबा ताले सारा लंका रे जने साधु मिलिले सी होचंती विभीषण आ सारा अयोध्या रे जने अछंती किए से असाधु सी होचंती मंथरा
जड़े संशय मंथरा होउचंती संशय आ विभीषण होउचंती समाधान। तत्व या जे प्रत्येक जीवर जीवन संशय रु आरंभ, कारण अयोध्या रे संशय, मंथरार संशय, किंतु समाधान रे से शेष होता है। आम मन रे किछि संशय आसिला, करुणक मन रे संशय आसिला, राम कृपा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। संशय, तेणु संशय सदा बेले समाधान रे ही शेष होता है। जेमिति उदाहरण वाल्मीकि व्यास, संशयर गंतागर समाधान रे ही अंतक। रामायण भागवत, आ ये समाधान रो सूत्रधर किए से ना नारद। वाल्मीकि पाखरे सूत्रधर नारद, आ व्यास पाखरे भी सूत्रधर नारद। आपण कहबे आश्चर्य, ये पुणी कुआडे आसिले? आज्ञा हाँ, वाल्मीकि को मंत्र पढ़ेवा लोक होउचंती नारद, आ व्यास को भागवत लिखिबार प्रवर्ताइबा होउचंती नारद। तेणु लंकार रावण होउची भोगी, विभीषण होउचंती जोगी। रावण भोजन भोजन प्रिय, भोजन रहीता है, आउ विभीषण भजनर प्रतीक। जड़े भोजनर प्रतीक हेले, जड़े भजनर प्रतीक। तेणु साधु जीवर हृदय रे चेतना जागृत करे। तेणु राम राम उच्चारण करिकी विभीषण को हनु चिन्ही देले। जय श्री राम कही विभीषण अनु माने विभीषण को माने जेतेबेले विभीषण को पुर रे सीधा प्रवेश करिगले, सीधा प्रवेश करिसेंती, संशय करि नांती। सेठी जानिचंती एटी जणे के संतंकर गृह ये प्रवेश करिसेंती। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। एपटे ये राम कहउचंती, सेपटे सी राम कहउचंती। यार अर्थ कौन? बढ़िया कथा एटी। उभयकर मिलन होइतिला प्रथमे, आज से मिलन एटी भाई पाखरे पूरा लंका को संभाळेबा पई केही नाहांती। आ पुरुष विहीन होई जाइछि लंका। जणे नारी हमर गोटे कहंतिनी, हाँ रे भज मन कर तू दिय दर्शन, रे भज मन कर तू झियो दर्शन। जी सब झियो पालरे पड़िले से गले, सेई झियो लागी शिव होइले जोगी, गमिले कैलास वन, रे भज मन करुथा झियो दर्शन। आ तो झियो दर्शन करू, शिव तो जोगी हेले, चिंता कर तू कौनटा करू झियो संसार रे। सेई झियो हेतु शिव से राम बांधिले सेतु। आसे नहीं गला पर सीता को चोरी नला, बध हेला लंकार रावण रे, भज मन करुथा झियो दर्शन। करुथा केते करूछ? रावण सेतु बंध, शिव जोगी हवा। तेणु एठी गोटे जिनिस आसीची जे प्रभु कथा कौन करे ना जीव को जागृत कराए। आ प्रभु कृपारू अन्यर अंतकरण को चिन्ही हुए। जहाँ हनुमान पक्ष से दिन विभीषण सहित साक्षात। आज साधारण कथा नुहे, विभीषण रावण जेतेबेले मुक्ति पाईगले, अहनाथ रघुनाथ बिनु समदर सिनयान, से कहीं एटी मंदोदरी कहले समदर सिनयान विभीषण को जो। कारण विभीषण को से चिन्हिकी राजा कर सारे, मंदोदरी कथा जानी सारे। विभीषण शरण रे गलानी, महाप्रभु पाखे शरण, तांको शरण पंजरे आश्रय नहीं सारे, ताको छत्र छाया तले राजा कर सारे महाप्रभु। तेणु से समदर सी कहगला तुमको मुक्ति देवे। विभीषण मुक्ति पाई ना, आउ किछि दिन तांको रहिबाकू पड़बा, से चिरंजीवी जहाँ भी हो। तेबे इठी गोटे कथा, साधु कृपा हेले प्रभु को दयारु कार्य केबे हानि हुएनि। तेणु ब्राह्मण रूप हनुमान, ब्राह्मण रूप जाइतिले हनुमान,
सेमती जाई नथिले मर्कट बेशरे जाई ना ब्राह्मण रूप में किए किए जाइछंती ना ब्राह्मण रूप में हनुमान जाइछंती ब्राह्मण रूप में समुद्र आसिछंती केतेबेले जेतेबेले सेतुबंध बंधन करागला ब्राह्मण रूप में आसीथिले समुद्र जड़े विभीषण को जड़े प्रभु को उपयुक्त सम्मान देइछंती ब्राह्मण ठारू सदाबले समस्त सम्मान दबा शिख तेणु ब्राह्मण जे सर्वधर्मर गुरु जे दयार प्रतीक जे मोक्षर प्रतीक जे धर्मर अंश एवं रक्षाकर्ता जार चित्त होउची करुणार आर्द्र स्वतः प्रमाण वेद आ प्रभुंकर श्रेष्ठ आश्रित से तो युधिष्ठिर ब्राह्मणकर विचार करें आम करें गुरु कृपाचार्य करें जड़े ब्राह्मण ही ब्राह्मणकर विचार करेंगे गुरु आ जड़े ब्राह्मण उभय कृपाचार्य विचार करेंगे तेणु अन्य को क्षमा देवार महानता यही कारण हनुमान कौन कले निजे मध्य श्रेष्ठ ब्रह्मचारी एवं ब्राह्मण कारण उत्स मुखरे ब्राह्मण रूप धरिकी प्रभुंक सह प्रथमे कथोपकथन करिसेंती किए से ना हनुमान ब्राह्मण रूप से भल कथा आसे एकादश स्कंदरे जे गुरु ब्राह्मण मुनिर भी गगन पवन पृथ्वी जल वैष्णव बहुतासने विष्णु पूजिब एते स्थाने एकादश स्कंदर कथा बलि प्रसंग बहुत सुंदर आउरी कथा आसी सर्वदेवता विष्णु देहे ब्राह्मण देहे विष्णु रहे कथाटी विचार कले आपण माने ये ब्राह्मण वेश धरी पकईले हनुमान सेपटे जाकि विभीषण पाखे ब्राह्मण वेश अन्य वेश जाता ब्राह्मण वेश कहीं धरले तेणु विभीषण हनुमान को प्रणाम करिसेंती काहेकि ना विभीषण होचंती पूर्वर धर्म रुचि जे विभीषण पाइथिले वर ब्रह्मा जेतेबेले वर देले कौन देइथिले विष्णु भक्त होई अमर जगत मध्य करी विहार गत पद्मज देइए बर सानुजे जबे जे सेतिके बेले बर पाइला बेले वैदेश विलास रे वर्णना कले कवि सम्राट उपेन्द्र भंज ब्रह्मा जेतेबेले बर देले गत पद्मज देइए बर जे तमे विष्णु भक्त होइके अमर ही रहिबो आगरु विष्णु भक्त होइके अमर हबो कहंती रावणानुज तुम्भ दर्शन रे प्रीति उदय होइछि मोर हृदय रे आहे रघुकुलनाथ दास अनुरागी तुम्भ दर्शन मोर मुहि बड़ भागी तेणु एठी जदि आपण माने गोटे विचार करिवे ई प्रसंग रे जेतेबेले विभीषण रावणपुरी को नहीं कि माने रावण कर शव सत्कार इत्यादि सबु सारिले भाई माने रावण परिवार लोक मान सहित शव सत्कार कले तापर श्रीराम गले अशोक वन से अल्प दूर देखिले तांको प्राणप्रिया सीता पति विच्छेद दुखरे कातर हो पड़ी दुर्बला पतला हो किंतु श्रीराम को देखा मात्रे से आनंद विह्वल हो पड़े सुखिला मुहर हस फुटी उठिला राम सीता मिलन दृश्य देखिकी सुग्रीव हनुमान जाम्बवान अंगद नल नील ये समस्ते आनंद नाची उठिले तेरे श्रीरामचंद्र कौन कले श्रीलंका विभीषण को राजा कराइले कल्प कल्प धरी तमे एठी राजुती कर आशीर्वाद देले पितृ सत्य पालन पाई से 14 वर्ष धरी वन रे रहितिले व्रत उद्यापित हला राम लक्ष्मण सीता हनुमान को सांगरे धरी अयोध्या फेरिले से पर्यंत भाई भरत श्रीराम पक्षरु अयोध्या शासन करुथिले से भाई कठौहल को पूजा करी आसुथिले भाई अयोध्या फेरी आसीबा खबर पाइकी से कठौहल को मुंडरे मुंडे आसी भाई को स्वागत कले आउ से पर्यंत भरत नंदी ग्राम रे गोटे आश्रम करी सेठी तपस्वी जीवन यापन करुथिले एवं श्रीराम भरत को देखा मात्रे कुंडे पकईले
से पर्यंत भरत स्त्री तपस्विनी जीवन यापन करुले। मांडवी कैकेयी निज भूल बुझिक अनुताप नल दग्ध हो पड़। कौशल्या और सुमित्रा कैकेयी श्रीराम को फेरवा बाट चाह बस पुओ बोहू को पाछुटी नेले। श्रीराम हेले अयोध्यार राजा। तांकर राजुति प्रजा माने एपरी सुख शांति थिले जे एबे मध्य लोके कहउछन्ति आमुक राम राज्यर सुख मिलू। तेबे श्रीरामचंद्र थिले त्रेता युग राजा, किंतु ता थिला वास्तव रे सत्य युग। ये गोटे प्रसंग। लोके सत कहउथिले कहा प्रति कहार हिंसा जति दिन श्रीराम राजुति करिछन्ति, कहा प्रति कहार हिंसा द्वेष ईर्षा नथिला, कपटता कौन लोक जानी नथिले। समस्ते एक पत्नी व्रत पालन करुथिले। श्रीरामचंद्र थिले आदर्श राजा, सीता थिले सती, तांको हृदय थिला स्वच्छ सलिल भली पवित्र। श्रीरामकर तीन भाई भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न थिले श्रीरामकर परम भक्त। बड़ भाई जहाँ कहते से माने ता अक्षर अक्षरे पालन करुथिले। आउ एपटे लंकार राजा हेले किए थिले, किए से हेले ना विभीषण। रावण परे विभीषण। एइठी गोटे जिनस आपण माने देखिबे, विभीषण जेतले राजा हेले एते सहजरे राजा हैना, सेतिकी से तपस्या करिछन्ति, सेतिकी चेष्टा मध्य करिछन्ति। कारण जेतेबेले पहुंचीछन्ति विभीषण को प्रसंग आसीची, हनु आउ विभीषणकर मिलन हेइची। से मिलन भितरे बढ़िया सुंदर कथा आसीची। बहुत दुखरे थिले किए से ना विभीषण। जी जेते कष्ट सहिब सी सेते कृष्ण को पाइबे। विभीषण सहित मंदोदरी सीताराम को पूजा मंदोदरी पूजा कर, किंतु पूर्ण तामसिक पाखे रही। राम शब्द जो रावण विभीषण को राजद्रोही कहवा, मात्र मंदोदरी चतुर कथारे सी कहते मंदोदरी एक मुझे कहते कहले विभीषण जो लिखिं राम तुम बुझा भूल, तमें भूल बुझीच। से रे रावण मोरे मंदोदरी भाई भाउजों ना को मिसेकी राम लिखिं। रावणर सन्देह दूर होती भल कथा आसे। तेणु प्रथमे विभीषणकर न्यूनता प्रकाश, सेठी विभीषण न्यूनता प्रकाश करिसेंती राम का माने हनुमान का आगे। हनुमान मिल जाइए आज मंगलवार। हनुमान विभीषण को जिते पचारि उभय को मिलन तो होती, किंतु पचारि केमिति अच्छ। विभीषण आउ कहले केमिति रहिबी। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दस नन्नी महु जीव हमारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हई कृपा भानुकुल नाथा। हे पवन पुत्र मु केमिति अच्छी कौन कहबी शुण। मु एठी दांत घेर मानक भीतर जीव विचारा पड़ी रहिला भली मु रहिछि। हे प्रिय मते अनाथ बोली जानी सूर्यवंशनाथ श्रीराम कौन केबे कृपा करिवे। श्रीमद भगवती गीतार बढ़िया कथा वर्णना करा जाइछि। दुखेषु उद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह, दुखोपि सुखोपि न कोपि दाता धर्मशास्त्र कौन। किंतु एठी ये कथा तो रहीगला। एठी गोटे कथा कौन कहले ना, जिमी दस नन्नी महु जीव हमारी। दांत मानक घेर भितर जीव जेमिति थाए मु लंकारे सेमिति पड़ी रहिछि। अर्थ कौन हनुमान एडी बुझे। हनुमान कहले तमें भलरे अछ, दांत मानक भितर जीव तो बहुत भलरे अछ, चिंता करनी। केमिति ना देख, दांत आसे डेरी रे जाए शीघ्र। पिलांकर दांत उठे पुणी पड़े झड़े पुणी बढ़े, दांत डेरी रे आसे ना। किंतु प्रथमरु जीव आसी थाए आ शेष पर्यंत थाए। आउ गोटे उदाहरण, दांत 32टी किछि उच्चारण करि पारंतिनी, किंतु जीव मंत्र ठारू भजन पर्यंत सबुर मूल। दांत
भोजन प्रिय भोगर प्रतीक, जीभ भजन प्रिय त्यागर प्रतीक। दांत को रोग हुए, दांत उपुड़ी जाए, फाइलिंग बफिंग जहाँ करुता, दांत उपाड़, दर्ज है दांत उपाड़, कैपिंग केते कौन अच्छी दांतर बहुत किछि, रूट कैनाल एगुड़िक सब बहुत कथा दांत, किंतु जीभ क्षेत्र में किछि नाही। हे सलीसीमा है टिके विटामिन बी कम्प्लेक्स जो टैबलेट कौन मिले सलीसीमा बटिका आम पिला बेले कहते सब बस सरला, जीभर किछि हुए। शव सत्कार बेले दांत सब छिटिकी पड़े जदि दांत थाए, किंतु जीभ पूर्व भली शेष रे जाए, सेमिति थाए। दांत बाहाड़ा हेले ताकू जीभ साइज करे, दांत मूलरू खाद्य जीभ बाहर करे, दांत को कष्ट आसे जीभ कौन करे ना कटु कथा बेले बेले कही थाए। दांत मूल रे पायरिया सृष्टि करे, जीभरू लाल बाहरी खाद्य पाचक रोग भल करे। सबु कथारे दांत आवश्यक नथिला बेले रोग हेले डाक्तर आग जीभ देखती। आम कौन गोटे रोग है होमियोपैथिक डाक्तर पाक जा गले आग जीभ जीभ लाल पड़, लाल पड़े हलदिया पड़े जीभरू परिचय मिले रोग कौन आग जीभ देखती। दांत कर्कश कार्य मध्य तद्रूप, जीभ नरम आ कथा द्वारा बसीभूत, सी कौन करे ना कथा द्वारा बसीभूत करई थाए। दांत चोबेइबा गोटे रोग अशुभ लक्षण, आउ जीभ गुणु गुणु गाइले ता आत्मचिंतन। दांत अध्यात्मवादी नुह, जीवा कौन करे व्रतरे बा मौन व्रतरे ध्यानर एकाग्रता, जीभ जदि चुप रहिला। शुभ कर्मर संकेत दांतरू मिले नाही, ता क्रोधर प्रतीक, किंतु जीभ द्वारा हुलहुली शब्द सुभिताए। दांत प्रभु विरोधी, दांत कड़मड़ कर चोबई था, रागिगले दांत कड़कड़ करती, दांत रगड़ी आसती, किंतु जीभ प्रयाण समय भी भगवान का नाम स्मरण करे। तेणु हनुमान कहती, हनुमान भाषा रे बुझौचंती से रावण को जे चर्बण घर्षण कर्तन अनेक प्रकार दांत अछंती, मात्र लंकारे एमानकर अंत तमे ही देखिब। आमर नाई दांत, दुधु दांत गोटे, कल दांत गोटे, एमान सब चर्बण घर्षण कर्तन दांत कह जाए, किंतु जीभ से गोटी जीभ। तेणु समस्ते होउचंती दांत, अनेक दांत अछंती, तमे देखिब, तमे एमानकर दांतर अंत देखिब। तेणु एथिरे किए से आपण देखिए चर्बण कर्षण, चर्बण घर्षण कर्तन दांत सहित, चर्बण घर्षण कर्तन सहित तुलना करा जायछि। काहाकू चर्बण अतिकाय कुंभकर्ण एवं अकंपन, ये होचंती चर्बण एमानकर दांत, एमानकु चर्बण सहित तुलना करा जे कि बल माने कल दांत, एमाने होचंती कल दांत, आंकु कल दांत कहा जाए, चोबई थाए। घर्षण जे कि अक्षय कुमार जम्बुमाली प्रहस्त माल्यवंत एमाने घर्षण, ये चक्का दांत। आ रावण ताकू कर्तन दांत बोली कहा जाए, रावण और इंद्रजित एमाने छामु दांत, कर्तन छामु दांत को कर्तन दांत कहा जाए। तेणु दांत थरे पड़िकी थरे जन्म हेबारु एमानकु जेमिति थरे पड़ी थरे जन्म हेबारु एमानकु द्विज कहती, मात्र यह संस्कारगत शब्द नुहे। दांत स्वार्थ जीव परमार्थ, उत्तरकांड रे बढ़िया वर्णना। परे उपकार धर्म नहीं ताई, पर निंदा सम नहीं अधमाई। परर उपकार ठारू बड़ी बड़ धर्म आउ किछि नाही, आउ अन्यर निंदा ठारू बड़ी कि बड़ अधम किछि नाही। तेणु अन्यर दुख को जी प्रभुपादरे समर्पित कराए, से ही संत। खाद्य काटे दांत,
दुख काटे संथ मोह काटे भगवंत। सेथिपाई विभीषण लंकार राजा हबाकू योग्य निर्वाचन हेले। प्रभु प्रेमी हनुमान बढ़िया बुझेले तमें से कष्ट सहीच बहुत कथा अच्छी तमें से जदि दांत किसी जीभ को काटी दिए रावण को माने विभीषण कहया अनुसार मुझे कहीं कहले मुझे घेरर अच्छी ना टिके बाहर को बाहर जी दांत मैंने मत चिपिदेवे खंडिया हो कष्ट पाइबी ना। हाँ एक कथा ठीक किंतु तमें टिके ओल्ट पाल्ट करी क्या कहीदेले जी मुह को गोटे पकाओ अति से आग जाड़ीदेव तो दांत जाड़ीदेवी आग से दांत तक जाड़ीदेव जीभ तार चुपचाप थी तमें आरंभ करदेव। तेणु ए सब प्रसंग देखले रावण पर विभीषण जी एतिकी कष्ट सही आओ लंकार राजा अमर होइकी रहिले। सप्तेति चिरंजीवी न भितर विभीषण होउचंती अमर। तेबे आसंतु एठी आमे आज कथा प्रवाह को सांग करिबा एवं कौन सब कार्यक्रम प्रसारण करा जाउची जानिबा कार्यसूची माध्यम रे एक स्वर रे आमे कहिबा जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ।